دوستوں، ہوائی جہاز کا سفر سب سے زیادہ باسہولت قرار دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ دنیا بھر میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ صرف چند گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ہم راکٹ کے ذریعے چاند تک پہنچنے کے بعد اب مریخ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، اور ایلن مسک 2050 تک 10 لاکھ انسانوں کو مریخ پر آباد کرنے کا منصوبہ دنیا کے سامنے لا چکے ہیں۔ دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے، یعنی کرۂ ارض اب ہمارے لیے اتنا چھوٹا ہو چکا ہے کہ اس کے کچھ حصوں کو نظر انداز کرنا ہمارے لیے عام سی بات ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز ہر وقت کہیں نہ کہیں محو پرواز رہتے ہیں، لیکن امریکہ سمیت دنیا کے دیگر بہت سے ممالک میں چند مقام ایسے بھی ہیں جہاں سے کسی بھی ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ اہم دفاعی تنصیبات یا تاریخی مقامات کا تحفظ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ابھی انٹرنیٹ پر لائیو گلوبل ایئر ٹریفک کا نقشہ کھول کر دیکھیں تو آپ کو مغربی دنیا میں ان علاقوں کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا، لیکن جب آپ ایشیا کا رخ کریں گے تو یہاں کے ایک بڑے علاقے میں آپ کو کسی بھی ہوائی جہاز کے گزرنے کا ثبوت نہیں مل سکے گا۔ یہ دن کے کسی خاص وقت میں نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب بھی اس علاقے کا فضائی جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے تمام ہوائی جہاز اس بڑے علاقے سے گریز کر رہے ہیں اور اس کے ارد گرد پرواز کرنے کے لیے اپنا روٹ تبدیل کر رہے ہیں، جیسے یہ کوئی ممنوعہ علاقہ ہو جس کے اوپر سے گزرنا یا پرواز کرنا منع ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ علاقے سمندر کے وسط میں ہیں، بلکہ یہ ایشیا میں ایک بہت بڑا زمینی علاقہ ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا بر اعظم ہے۔ تو آخر دنیا کے تمام ہوائی جہاز اس علاقے میں آنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، ان علاقوں سے ہوائی جہاز کا کترا کر گزر جانا بہت سی وجوہات کا حامل ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، آپ کو اس خطے میں ہوا بازی کی تاریخ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ یہ ڈیڈ زون ایک اہم جغرافیائی خطے پر ہے جسے تبتی سطح مرتفع کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے بڑے بنجر علاقوں میں سے ایک ہے۔ انٹارکٹیکا اور شمالی گرین لینڈ کے بعد تبت کی سطح مرتفع پوری دنیا میں ناقابل رہائش سب سے بڑا خطہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آبادی بھی بہت کم ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ علاقہ فرانس سے 5 گنا زیادہ بڑا ہے، لیکن اس کی آبادی صرف 1,40,00,000 کے قریب ہے۔ یہاں بہت کم لوگ رہتے ہیں کیونکہ اس سطح مرتفع کی سطح سمندر سے اوسط بلندی 4,500 میٹر سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے بلند جغرافیائی خطہ کہلاتا ہے، اور اسے عرف عام میں دنیا کی چھت کہا جاتا ہے۔ یہ خطہ اس عرفیت کا بجا طور پر حقدار ہے کیونکہ دنیا کی یہ چھت گزشتہ کئی دہائیوں سے ہوائی جہازوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رہی ہے۔ تبت کی سطح مرتفع کے اس پار پرواز کرنے کی پہلی بڑی کوشش دوسری جنگ عظیم کے دوران کی گئی تھی، جب اتحادی فوج کو، جو اس وقت برطانیہ کے زیر تسلط ہندوستان میں موجود تھی، جاپانیوں کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے جنگی ساز و سامان چین پہنچانے کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے یہ راستہ زیادہ طویل نہیں تھا، خاص طور پر مشرقی ہندوستان سے چین کے علاقے کھون منگ تک، جس کا فاصلہ 840 کلومیٹر سے کچھ زیادہ تھا۔ لیکن یہ ہوائی جہاز چونکہ اونچے پہاڑوں اور تبتی سطح مرتفع کے بلند ترین مقام سے پرواز کر رہے تھے، پائلٹس کو انتہائی شدید جھٹکوں نے آن گھیرا۔ یہاں ہوا کی رفتار 200 میل یعنی تقریباً 321 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ درجہ حرارت انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ہوائی جہاز کا ایندھن منجمد ہونے کا خطرہ تھا۔ خراب موسمی حالات کی پیشگوئی کرنا بھی مشکل تھا، اور کوئی ہنگامی ہوائی اڈہ بھی موجود نہیں تھا جہاں کسی حادثے کی صورت میں یا جاپانی جنگجوؤں کی آمد پر جہاز کا رخ موڑا جا سکے۔ ان تمام رکاوٹوں نے پرواز کو ناقابل یقین حد تک اتنا خطرناک بنا دیا تھا کہ 42 ماہ کے عرصے میں یہاں سے گزرتے ہوئے پہاڑوں میں گم ہونے والے 594 طیاروں اور ان پر سوار 1659 مسافروں کا آج تک سراغ نہیں مل سکا۔
इन नुकसानात में से अक्सर दुश्मन की कार्रवाई नहीं बल्कि उन खतरनाक हालात का नतीजा थे जिनका पायलट्स को परवाज के दौरान हमेशा सामना रहा। आदाद शुमार के मुताबिक तिब्बत की सतह मुर्तफा पर इत्तेहादी फ़िज़ाइया के अमले का जानी नुकसान जर्मनी के खिलाफ बरतानिया की पूरी जंग के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था। कुछ महीनों के दौरान इत्तेहादी तैयारों में से ऐसे 50% तैयारे गिर कर तबाह हो गए जिन्होंने परवाज के लिए इस रास्ते का इंतखाब किया था, जो जाहिर है आज के जदीद हवाई जहाज़ के लिए नुकसान की काबिल कबूल शरह नहीं होगी। खुशकिस्मती से दूसरी जंग अजीम के बाद की दहाइयों में तिब्बती सतह मुर्तफा को जदीद हवाई जहाज़ों के लिए निस्बतन महफूज करार दिया जाने लगा। चीन ने तिब्बत में पहला हवाई अड्डा 1956 में तामीर किया, जिसके एक दहाई बाद तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा में जदीद हवाई अड्डे की तामीर मुकम्मल कर ली गई थी। आज तिब्बत के सतह मुर्तफा पर लहासा और शीनिंग में 2 अहम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे वाक़े हैं। इन दोनों हवाई अड्डों को बुनियादी तौर पर तिब्बत और चीन के दीगर हिस्सों के दरमियान राब्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लहासा से नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के लिए सिर्फ एक बैनुल अक़वामी परवाज़ ऑपरेट की जाती है, जबकि शीनिंग से ताइपे, टोक्यो और कुआलालंपुर के लिए परवाज़ें चलाई जाती हैं। ये हकीकत अपनी जगह कि मौजूदा दौर में बाज़ औक़ात कई हवाई जहाज़ तिब्बत की सतह मुर्तफा के ऊपर से भी परवाज़ करते हैं, लेकिन मशरक़ी एशिया और मगरिब के दरमियान तकरीबन हर बैनुल अक़वामी परवाज़ इस इलाक़े से परवाज़ करने के बजाय अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। अब तक हम इस खित्ते में हवाई सफ़र के चंद हक़ाइक़ से आगाह हो चुके हैं कि जदीद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों के बावजूद क्यों ज़्यादातर हवाई जहाज़ अपनी तवील परवाज़ों में तिब्बत का रास्ता इख्तियार करने, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि बुलंद पहाड़ों के ऊपर परवाज़ करने से गुरेज करते हैं। इस सूरत हाल की 4 बुनियादी वजूहात हैं जिन पर गौर करना इंतहाई आसान है। इनमें से पहली वजह हंगामी हालात के दौरान इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का मुमकिन सामना है। इस हवाले से गौर करें तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, तिब्बती सतह मुर्तफा की औसत बुलंदी 14,000 फुट से ज़्यादा है, जबकि हवाई जहाज़ आम तौर पर 30,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर परवाज़ करते हैं। आम हालात में तो इसे मसला करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन बाज़ औक़ात नाजुक हंगामी हालात की सूरत में, जैसे केबिन डिप्रेशन या इंजन फेल होने के बाद हवाई जहाज़ को 10,000 फुट की बुलंदी तक लाया जाता है। केबिन डिप्रेशन की सूरत में हवाई जहाज़ के अंदर मौजूद मुसाफिरों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क फराहम किए जाते हैं, लेकिन इसकी मिक़दार इंतहाई महदूद होती है, यानी ये मास्क तकरीबन 20 मिनट तक ऑक्सीजन फराहम करने के काबिल होते हैं। इस सहूलत का मकसद मुसाफिरों के लिए उस वक्त तक ऑक्सीजन फराहम करना है जब तक कि हवाई जहाज़ 10,000 फुट की बुलंदी पर ना आ जाए, जहां ऑक्सीजन मास्क के बगैर सांस लेना निस्बतन आसान होता है। अब जाहिर है कि ये सहूलत तिब्बत के वसी सतह मुर्तफा पर कहीं भी मैसर नहीं, जिसका रकबा फ्रांस से 5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि तिब्बत की सतह समंदर से औसत बुलंदी 14,000 फुट से ज़ायद है। यानी अगर कोई तैयारा प्रोटोकॉल के तकाज़ों के मुताबिक 10,000 फुट की बुलंदी पर आना चाहे तो ये तकरीबन बल्कि यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं है। ऐसा करते हुए तैयारा किसी पहाड़ की चोटी से टकरा जाएगा और तबाह हो जाएगा। अगर तिब्बत के ऊपर से परवाज़ के दौरान हवाई जहाज़ में केबिन डिप्रेशन की सूरत हाल पैदा हो जाए तो हंगामी हालत में हवाई जहाज़ का रुख मोड़ने के लिए महफूज करीब तरीन और बड़े बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे लहासा, शीनिंग, काठमांडू, छेंगतो, ओरमची और अलमाते हैं। ये हवाई अड्डे एक दूसरे से सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर के फासले पर हैं और इनमें से ज़्यादातर तिब्बत की गैर आबाद सतह मुर्तफा के गिरदा गिर्द वाक़े हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई तैयारा काठमांडू और लहासा के दरमियान परवाज़ करता है तो ये दोनों मकाम हवाई जहाज़ की मंजिल के अलावा मुतबादिल हंगामी हवाई अड्डे भी करार दिए जा सकते हैं।
साल 2018 में चीन के मशरकी इलाके चोंगछिंग से लहासा जाने वाले सिचुआन एयरलाइंस की एक परवाज की खिड़की उस वक्त टूट गई जब तैयारा 30,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। ऐसी सूरत हाल में हवाई जहाज को केबिन डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती से हवाई जहाज तिब्बत के सतह मुर्तफा पर ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए पायलट तेजी से उसका रुख मोड़कर चेंगतू के हवाई अड्डे पर पहुंचने में कामयाब हो गया ताकि केबिन डिप्रेशन के 35 मिनट के अंदर हंगामी लैंडिंग की जा सके। इस तरह की हंगामी सूरत हाल सतह मुर्तफा में जितना ज्यादा अंदर जाने पर सामने आती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इस तरह आपको करीबी हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए मजीद वक्त दरकार होगा, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के बगैर इंतहाई बुलंदी पर देर तक परवाज करना मजबूरी बन जाएगा। यहीं से हम मसला नंबर 2 का जिक्र करेंगे कि आखिर हवाई जहाज तिब्बत के ऊपर से परवाज क्यों नहीं करते। तिब्बत में चूंकि आबादी बहुत कम है, इसलिए वहां परवाज करने की अक्सर ज़रूरत पेश नहीं आती। यूरोप और एशिया के दरमियान तवील फासले की बैनुल अक़वामी परवाजें तिब्बत के ऊपर से परवाज करने से अक्सर गुरेज करती हैं, क्योंकि वो किसी हंगामी सूरत हाल का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन तिब्बत के लिए अंदरून मुल्क मुख्तसर परवाज़ों की तादाद भी इंतहाई कम है, क्योंकि चीन के इस खुद मुख्तार इलाके में सिर्फ 30 लाख लोग आबाद हैं, जो इंतहाई वसी खित्ता है। इसका मतलब ये है कि चीन के मजमूई रकबे का तकरीबन 13% होने के बावजूद तिब्बत की आबादी चीन की मजमूई आबादी का सिर्फ 0.2% है। अगली 2 वजूहात जिनकी बिना पर तवील फासले की परवाजें तिब्बत के ऊपर परवाज करने से गुरेज करती हैं, वो हैं शदीद तुंद तेज हवाएं और जेट फ्यूल के मुंजमद होने का खतरा। सतह मुर्तफा और पहाड़ों पर जब तेज हवाएं चलती हैं तो हवा अक्सर लहर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐसे में जब हवाई जहाज इस हवा से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें शदीद टर्बुलेंस यानी झटकों का सामना रहता है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे जेट फ्यूल के मुंजमद होने की। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आने पर जहाज का ईंधन जमकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है और हवाई जहाज की परवाज के दौरान इस तरह के इंतहाई सर्द हालात शाज़ो नादिर ही पेश आते हैं। तिब्बत की सतह मुर्तफा पर इंतहाई सर्द हवा में दर्जा हरारत इस हद तक या इससे भी कम सतह पर पहुंच सकता है। किसी मुख्तसर परवाज के लिए यकीनन ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन तिब्बत से गुजरने वाली तवील परवाज़ों के लिए जो 6 घंटे या इससे ज़्यादा वक्त तक जारी रह सकती हैं, ये वाकई एक अहम और बहुत बड़ा मसला बन सकता है। बिलाखिर हम ये जानने में कामयाब हो चुके हैं कि हवाई जहाज़ जब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तिब्बत के सतह मुर्तफा के ऊपर से परवाज़ करने से गुरेज करते हैं तो इसकी वजह कोई माफ़ौक़ुल फितरत सूरत हाल या जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सादा सी हकीकत है कि अगर उन्हें तिब्बत से गुजरते हुए किसी हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो ये इस तजर्बे के लिए शायद ज़मीन के आबाद बर्रे आज़मों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह साबित हो सकती है। ये एक याद दहानी भी है कि बज़ाहिर इंतहाई तरक्की याफ्ता, मरबूत, महफूज और छोटी नज़र आने वाली इस दुनिया में आज भी चंद ऐसे गैर आबाद और दूर दराज इलाके मौजूद हैं जहां से गुजरना हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोज़ से महजूज होते रहें।